Hello students, welcome to biology class. Today we will start our first chapter of biology, that is transport system in plants. Plants need water, minerals and food to live. Plants need water for process such as photosynthesis, transportation and mechanical functions. Minerals are also required by the plants in the form of salts or ions. Water and minerals are absorbed by the root hair from the soil. They are then transported from the roots to other part of the plant's body in upward direction. Similarly, the leaves prepare food from carbon dioxide and water during the process of photosynthesis. The food is then transported in downward direction to all the parts of plants. Therefore, the process by which a substance is absorbed or synthesized in one part of the plant is transferred to other part of the plant is called transportation. Transportation in plants is carried by means of conducting system, that is xylem and phloem. As we all know, plants need water, minerals and food to live. These all things plants require to live. Plants need water for process such as photosynthesis, transportation and mechanical function. प्लांट को वाटर कौन से प्रोसेस के लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनिकल फंक्शन के लिए प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. अब वाटर को मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वाटर को मिनरल्स सॉइल से मिल जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट और आयंस. सॉल्ट और आयंस के फॉर्म में मिनरल्स मिल जाते हैं. And this water and minerals are absorbed by the root. रूट एब्जॉर्ब करते हैं जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं. रूट में जो हेयर्स होते हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन ट्रांसफर फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. फिर रूट से प्लांट्स के सारे पार्ट्स में मिनरल्स और वाटर ट्रांसफ़र हो जाता है. एंड देन लीव्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम. अब लीव्स किसकी हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को क्या प्रोसेस है? आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस. प्लांट लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट, राइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट. in the presence of sunlight, chlorophyll, this process is called photosynthesis. अब जो भी फूड प्लांट में बनता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और जो भी मिनरल्स आयंस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होते हैं. अब ये जो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हर एक ट्री में. जो लॉन्ग ट्री होते हैं, बिग ट्री होते हैं, उनमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है. अगर यही ट्री अगर स्मॉल साइज़ में तो उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है. विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक जगह से दूसरी जगह, नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग ट्री? व्हाट अबाउट बिग ट्री? In big tree we could require transportation system. Therefore, the process by which a substance absorbed or synthesized in one part of a plant is transferred to other part of the plant is called transportation. The transportation in plant is carried by means of conductive system, that is xylem and phloem. These two are tissues which is help for transport minerals and water to the plants. Now, transportation in plants. Flowering plants have a very well developed system to transport water and minerals throughout the plant's body. We call it vascular system. This system extends in the plant's body from the tips of roots up to the tips of the leaves. It contains two types of tissue, namely xylem and phloem. कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम. विद द हेल्प ऑफ वस्कुलर सिस्टम वी ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी. दिस vascular system consists two tissues, that is xylem and phloem. We further discuss about these tissues also. Plant tissue.
As studied earlier, we know that body of all living beings is made up of cells. These cells are arranged in different groups to form tissues and then perform particular function for an organ according to shape, size, structure and function. The plant tissues are of two types, namely meristematic tissue or growth tissue or permanent tissue. As you know that all living beings is made up of cell. हमारी सबकी बॉडी में ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबकी बॉडी किससे बनी रहती है? सेल. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अवर बॉडी. A group of cell make a tissue, right? In your previous class you already studied about cell and tissues. The group of cell make a tissue. And in plants also there is mainly two types of tissue, that is meristematic tissue and permanent tissue. This is a flow chart of tissues, plant tissue. You can see first one is meristematic tissue. This meristematic tissue is divided into two parts, that is apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue, and the another tissue is permanent tissue. This tissue is also divided into two parts, simple permanent tissue, complex permanent tissue, and this simple permanent tissue is further divided into two parts, that is protective tissue, supportive tissue. Complex permanent tissue again divided into two parts, that is xylem and phloem. These are the flow chart of tissues of plant. You may draw this flow chart in your rough notebook. It is easy to understand. Now, meristematic tissue. The cell of meristematic tissue is thin-walled with a large prominent nucleus in the center. It lacks cell vacuole and it is filled with dense protoplasm. This cell divides rapidly and continuously. This leads to the growth of plants in height and thickness. Thus, this active dividing cell occurs in the parts of plant where growth takes place. For example, at the root and shoot tips. Now, meristematic tissue are most active tissue. This type of tissue are found in region where plant active growth. ये सबसे ज़्यादा एक्टिव टिश्यू होते हैं और ये टिश्यू कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर ग्रोथ हो प्लांट की, जैसे कि रूट एंड शूट में. दे आर मेड अप ऑफ बंचेस ऑफ स्मॉल डेंसली पार्ट थिन वॉल सेल. जिसकी वॉल सेल होती है इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो बहुत ज़्यादा थिन होती है. और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ना, ये अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, मतलब अपने आप को तोड़ते रहते हैं. पहले इतना बड़ा है, फिर उसने अपने आप को डिवाइड करके और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, छोटा कर दिया. कीप ऑन डिवाइडिंग. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं. ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दिस हेल्प्स टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन हाइट एंड थिकनेस. लंबाई में, हाइट में, जो हाइट ग्रोथ होती है ना प्लांट की, विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू. जितना भी लंबा ट्री है, लॉन्ग ट्री है, वो किस टिश्यू की वजह से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हाइट ग्रो करती है. और थिकनेस चौड़ा पतला, ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है. एंड दिस टिश्यू इज डिवाइडिंग cell occur in the part of plants where growth take place. For example, at the root and shoot system. I already told you this meristematic tissue present at the root and shoot tip. Now, depending on the location and function, there are two types of meristematic tissue: apical meristematic tissue and lateral meristematic tissue. And one more thing, this meristematic tissue have large nucleus. इस टिश्यू में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट वैक्यूल नहीं होता है. या तो बहुत छोटा होगा या तो होगा ही नहीं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस वैक्यूल? इट इज़ फॉर स्टोरेज पर्पस. तो क्या लगता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है? नो. इसीलिए इसमें जो वैक्यूल होता है लैक होता है, या तो होता ही नहीं है, नहीं तो बहुत छोटा वैक्यूल होगा. नाउ,
Location and functions depending on meristematic tissue, it is of two types. Depending on the location and function, this meristematic tissue is divided in two types, that is apical meristematic tissue and lateral meristematic tissue. अब ये meristematic tissue दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. नाउ दिस एपिकल meristematic tissue इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन हाइट. बेसिकली ये हाइट में हेल्प करता है. हाइट कितनी हो रही है प्लांट की. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट शूट एंड रूट्स टिप. हाउएवर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉज ग्रोथ ऑफ प्लांट इन थिकनेस. अब ये जो है ये थिकनेस के लिए होता है कि कितना ब्रॉड है कितना थिन है, ये डिपेंड करता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. और जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज़ बेसिकली फॉर ग्रोथ. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस टिश्यू इज हेल्पफुल ग्रोथ ऑफ प्लांट in height and thickness. This meristematic tissue is divided into two parts, that is apical meristematic tissue and lateral meristematic tissue. This apical meristematic tissue is responsible for the growth of plant in height and the lateral meristematic tissue is basically for thickness. Now you understand what exactly meristematic tissues are. Now you can see this intercalary meristematic tissue also here. Basically this meristematic tissue is found in base of the leaf. लीफ के बेस में मिलता है. और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम होता है, अगर कोई भी जो लीव्स है वो डैमेज हो गई है, या तो एनिमल ने ग्रेज कर लिया है खा लिया है राइट, या तो वो डैमेज हो गई है, तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये हेल्प करता है उस लीफ को रीग्रो करने के लिए. अंडरस्टैंड. दिस इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. It is for height. Lateral meristematic tissue, it is for thickness of the plant. Now permanent tissue. As the newly divided cell of meristematic tissue elongate and mature, they differentiate to perform specific function in the plant. Thus these cells lose the power of division either completely or for the time being. Therefore they are known as permanent tissue. The cells of permanent tissue have definite shape and size. According to the structure and function, permanent tissue is of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. I told you that this meristematic tissue is on dividing. ये जो meristematic tissue है ये क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं. इतना डिवाइड करते हैं कि एक टाइम पे आके वो अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की लॉस कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं. अंडरस्टैंड. एंड देन दिस परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर सिमिलर in their origin, structure and function. These tissues support and protect the plants and are subdivided into two types of tissue. Now इस टिश्यू में जो सेल होते हैं ना, टिश्यू किससे बनता है, नंबर ऑफ सेल से बनता है. इस टिश्यू में जो सेल है वो बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उनका सिमिलर है. और ये जो टिश्यू किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द प्लांट. सपोर्ट करता है प्लांट को स्टैंड करने में और ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से. दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू. प्रोटेक्टिव टिश्यू, दिस टिश्यू प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. जो भी एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एक्सटर्नली बाहर से प्लांट को, तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है. इट इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मिस विच फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट. एपिडर्मिस क्या होता है, लेयर ऑन द स्किन. स्किन के ऊपर एक लेयर होती है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से, हार्मफुल सनलाइट से या फिर एक्स्ट्रा विंड से. वो एपिडर्मिस क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है. एंड सपोर्टिव टिश्यू, दिस टिश्यू कंप्राइजेज द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी एंड गिव सपोर्ट टू इट. अब ये सपोर्टिव टिश्यू है, नाम से पता चल रहा है कि ये सपोर्ट करता है प्लांट. ये जो सपोर्टिव टिश्यू है ये प्लांट को सपोर्ट करता है स्टैंड करने में. एंड दिस सपोर्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: पैरेन्काइमा टिश्यू,
Collenchyma tissue, sclerenchyma tissue. These are the parts of supportive tissue. First, parenchyma tissue. Almost all part of plant. ये जो टिश्यू है ये सभी पार्ट में प्रेजेंट होता है. कौन से शेप का होता है? ओवल, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल. ये सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है. स्ट्रक्चर कैसे? सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग. दे हैव थिन सेल वॉल विथ इंटरसेलुलर स्पेस. दे हैव prominent nuclei एंड लार्ज सेल वैक्यूल. अब इस प्लांट, ये जो टिश्यू है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? जो इसके अंदर सेल है, इस टिश्यू के अंदर जो सेल है बेसिकली वो लिविंग सेल है. थिन वॉल है, पतली सी वॉल है सेल के ऊपर. और देख रहे हो आप इंटर सेलुलर स्पेस है, थोड़ा थोड़ा गैप है इसमें, सेलुलर स्पेस है. दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियर, न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है. और एक सेल वैक्यूल भी बहुत बड़ा है, लार्ज सेल वैक्यूल है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या देखा था? लैक सेल वैक्यूल है या तो नो वैक्यूल है. अब इसमें क्या है? लार्ज सेल वैक्यूल है. फंक्शन, स्टोर्स फूड स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि वैक्यूल बेसिकली फॉर स्टोरेज पर्पस. प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. पेरेन्काइमा सेल विथ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. और जो पेरेन्काइमा सेल है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलके हेल्प करता है. नेक्स्ट, कॉलेनकाइमा. प्रेजेंस बिलो द एपिडर्मिस इन यंग स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ लीव्स. अब ये एपिडर्मिस के बिलो, ये जो लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, उसके नीचे ये टिश्यू प्रेजेंट होता है. बेसिकली इन यंग स्टेम, जो नई स्टेम होती है वहाँ पर, या पेट्यूल ऑफ लीफ. पेट्यूल क्या होता है? ये जो लीफ है जो मिडरिप के साथ जुड़ी रहती है, इसको हम पेट्यूल बोलते हैं. शेप, सर्कुलर शेप होता है या ओवल शेप, सर्कुलर शेप, ओवल शेप या पॉलीगोनल शेप में होता है. स्ट्रक्चर, सेल ऑफ दिस टिश्यू लैक इंटरसेलुलर स्पेस and have thicker primary cell walls. They are thickened due to the presence of pectin and cellulose. अब structure, cell of this tissue lacks intercellular space. कोई आपको space दिख रहा है इनके अंदर? नहीं दिख रहा है. It means intercellular space नहीं है. Thicker cell walls, जो सेल की जो वॉल है वो थोड़ी थिक है. दे आर थिक एंड ड्यू टू द. अब ये जो सेल वॉल है वो थिक क्यों है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोस. सेलुलोस और पैक्टिन के प्रेजेंस के कारण इसकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है. अब सेलुलोस क्या होते हैं आपको पता है? इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल, मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल. इट इज़ बेसिकली फॉर मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल. अ फंक्शन, provide structural support to growing stem and leaves. structural support provide करता है, जब stem grow करती है ना तो उसको एक structural support देता है. sclerenchyma tissue, present stem and veins of leaf. stem में या veins of leaf में present होता है. veins क्या होती हैं? these are the veins, इसको veins बोलते हैं. shape, variable in shape, कोई भी शेप का हो सकता है, वेरी करता रहता है. स्ट्रक्चर, सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड एंड लैक प्रोटोप्लाज्म. जो इस टिश्यू में जो सेल होते हैं वो बेसिकली डेड होते हैं. दे आर नॉट लिविंग सेल, दे आर डेड सेल. एंड लैक प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब साइटोप्लाज्म. दे हैव थिकन सेल वॉल ऑल अराउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. एक बहुत थिक सेल वॉल होती है लिग्निन के कारण, क्योंकि इनके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है. उनकी वजह से जो वॉल होती है ना बहुत ज़्यादा थिक होती है. लिग्निन क्या होता है? व्हाट इज़ लिग्निन? बेसिकली इस लिग्निन की वजह से ही जो प्लांट में जो स्टेम होती है ना वो हार्ड होती है. अगर लिग्निन प्रेजेंट है तो जो स्टेम होगी वो हार्ड होगी. अंडरस्टैंड? फंक्शन, गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम टू द प्लांट. मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फंक्शन. मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोई भी काम करने का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी वाइंड अप द क्लास. टुडे वी कवर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, that is plant tissue,
meristematic tissue, types of meristematic tissue, permanent tissue, types of permanent tissue. In next class we will start complex permanent tissue. Okay, this is the assignment which I already sent you on 1st April. This is the back exercise of chapter number 1. We briefly go through this. Fill in the blanks. Dash system extend in the plant body for the tips of the root up to the tips of the leaves. कौन सा सिस्टम मिनरल्स प्रोवाइड करता है रूट से लेके शूट तक? वस्कुलर सिस्टम. जाइलम सेल इंक्लूड डैश एंड वेसल्स. ये हम आगे पढ़ेंगे अपनी क्लास में. ट्रैकियार्ड. Movement of the molecules of the substance from a region of higher concentration to the region of lower concentration is known as osmosis. Higher concentration से lower concentration में अगर molecule substance move करते हैं तो उसको हम बोलते हैं osmosis. The mineral absorption in plants take place by means of two processes, namely diffusion and active transport. जो minerals हैं प्लांट्स में कौन से प्रोसेस से जा सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल प्लांट्स, दैट इज डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन बेसिकली स्मॉल प्लांट्स में होते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डैश इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आयन फ्रॉम अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन. अगर मिनरल्स लोअर से हायर कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं तो उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अगर हायर से लोअर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस. ट्रू एंड फॉल्स. द वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट इज कॉल्ड सैप. ट्रू. वी विल डिस्कस what is sap in our next class. Cortex is the part of vascular bundle. False. Cortex is basically a neighboring cell of root cell. Maximum transpiration take place through stomata. True. You already learn about stomata in your previous class. Transpiration is slow in bright light. ट्रांसपिरेशन स्लो हो जाते हैं ब्राइट लाइट में. फॉल्स. ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाता है ब्राइट लाइट में. MCQs. Which of the following are xylem cell? आप अपने ऑप्शंस देखोगे तो दोनों आएंगे. वाटर एंटर ऑफ प्लांट्स बॉडी थ्रू रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अप टू द लीव्स थ्रू द xylem इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. जब अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना प्लांट का, वाटर और मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. द फूड मैन्युफैक्चर इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ शुगर. शुगर के फॉर्म में फूड मैन्युफैक्चर होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द टिप ऑफ द लीफ. जाइलम ट्रांसपोर्ट. जाइलम टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट. रूट हेयर सेल हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल. हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स होता है रूट हेयर्स में. एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंडक्ट फूड. अब एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होते हैं किस की वजह से? डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंडक्ट फूड. बेसिकली डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन होता है और फूड किससे कंडक्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना वाटर वेपर का, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज मोर डैश इन ब्राइट लाइट. ब्राइट लाइट में ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, रैपिड हो जाता है. ट्रू एंड फॉल्स. फ्लावरिंग प्लांट हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम. ट्रू. Vascular system is present only in the distribution of water in plant body. False. Vascular system distribute water and minerals. It basically distribute water and minerals both. Absorption take place only by osmosis. Absorption सिर्फ osmosis से होता है? No. Diffusion से भी होता है और osmosis से, दोनों process से होता है absorption. The movement of sap take place by only active transportation. जो मूवमेंट होता है सैप का वो सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में होता है? नो. मूवमेंट ऑफ सैप टेक प्लेस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इन डिफ्यूजन प्रोसेस. अपर सरफेस ऑफ लीफ हैव लेस ट्रांसपिरेशन देन द लोअर सरफेस.
टू, अपर सरफेस, लीफ का जो अपर सरफेस होता है वहाँ पर ज़्यादा कम ट्रांसपिरेशन होता है लोअर सरफेस से. नाउ इन योर बुक you observe the picture carefully and answer the questions. Page number 27. Which nutrient deficiency is depicted in the picture? पिक्चर में कौन सी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है? नाइट्रोजन की. What are the deficiency symptoms of the nutrient? न्यूट्रिएंट्स की क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं हमको प्लांट में? लीव्स बिकम येलो इन कलर. अगर नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है तो जो लीव्स है वो येलो कलर में हो जाते हैं. इज इट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस टू प्लांट्स बॉडी? अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है? इट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट. इट इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में जो सेल होते हैं उनको डिवीजन के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट, ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.